Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Math Teachers Modern English School Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss next chapter of class 9. It means chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. Introduction to Euclid's Geometry. So students, the word's geometry is derived from the two Greek words geo and metron. Two Greek words, geo, it means earth, and the metron, it means meaning to measure. Geo, it means meaning earth, and the metron meaning to the measure. सो ज्योमेट्री का जो मतलब है वो अर्थ को मापना, यानी कि लैंड्स का मेजर करना, मेजर ऑफ लैंड्स को मापना, लैंड्स से रिलेटेड लैंड्स को क्या करना है, मापना. तो द वर्ड ज्योमेट्री derived फ्रॉम द टू ग्रीक लेटर्स जियो एंड मेट्रॉन. Geo means earth and the metron means measure. Earth measures is called geometry. It means geometry appears to have originated from the need for measuring lands. ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री का जो अर्थ है वो मेजरिंग लैंड्स मतलब भूमि, अर्थ, और मेजरिंग मतलब मापना, अर्थ को मापना. ओके. वैदिक पीरियड ऑफ द ज्योमेट्री इज 800 BC to 600 BC. Vedic period of the geometry is 800 BC to 600 BC. And the Greek developed geometry in a very systematic manner. ग्रीक लोग जो थे वो ज्योमेट्री को बहुत सिस्टमैटिक मैनर्स के द्वारा उसको क्या किए, डेवलप किए. It means a step by a step. Three Greek mathematicians, Thales, Pythagoras, and Euclid. Pythagoras is a student of Thales. So Thales 600 BC, Pythagoras 572 BC, and Euclid 300 BC. Contribute a lot on geometry. ये तीनों ग्रीक मैथमेटिशियन ने ज्योमेट्री के ऊपर ढेर सारा वर्क किया, एक सिस्टमैटिक मैनर से ज्योमेट्री को डेवलप किया. Thales proved that a circle is bisected by its diameter. Thales ने ये प्रूव किया कि डायमीटर जो है वो सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. So Pythagoras developed the theory of the geometry to a great extent. Pythagoras भी ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारे वर्क किए. Great extent on geometry by the Pythagoras, and Euclid introduced the method of proving mathematical results. Euclid introduced the method of proving mathematical results by using deductive, the logical reasoning, and previous proved results. Previous proved result. It means Euclid introduced the method of proving mathematical results.
इंट्रोड्यूस जो है हम लोग को यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया कि मेथड ऑफ द प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स, मैथमेटिकल रिजल्ट, प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रूव्ड रिजल्ट्स, प्रीवियस प्रूव्ड रिजल्ट, जो पहले से प्रूव किया है उस चीज को एकत्र करके एक जगह लाकर और यूक्लिड्स ने हम लोग को प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट्स एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम लोग को बताया। इट मीन्स हमारे पूर्वजों को बताया, मतलब ज्योमेट्री के ऊपर यूक्लिड्स ने ढेर सारा वर्क किया, सारे कलेक्शन को उन्होंने एकत्र किया और एक सिस्टमैटिक मैनर्स के द्वारा उन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है एलिमेंट, द प्लेन ज्योमेट्री, द ज्योमेट्री of plane figures is known as Euclidean geometry. Plane figure, it means the two-dimensional figure. Triangle, rectangle, trapezium, parallelogram, all plane figures are the two-dimensional, and the geometry of the plane figures are called the Euclidean geometry. The famous book of Euclid's is Element on geometry, which is divided into the 13 chapters. Euclid's ने अपना एक सारे स्टेटमेंट्स को, सारे जो रिजल्ट्स ज्योमेट्री के ऊपर लोग रिसर्च किए थे, थेल्स, पाइथागोरस ने, वो सभी को एकत्र करके उन्होंने एक बुक में सबको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया और उस फेमस बुक का नाम था एलिमेंट। एलिमेंट को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया एंड it contains very wonderful results on geometry. The free yantra consists of 9 interwoven isosceles triangles, and in the Sindhu Valley civilization, the size of the brick was 4 multiply 3 multiply 4 multiply 2 multiply 1 inches. 4 is the length, 4 inch length lamba, 2 inch breadth and 1 inch height. It means thickness. Okay. 3 Indian mathematician, 3 Indian great mathematician, Aryabhat, Brahmagupta and the Bhaskar. Aryabhat born in 476 AD. Brahmagupta born 598 AD, and the Bhaskara Dutiya born 1114 AD are main contributors in geometry. मतलब हमारे भारत देश से ज्योमेट्री में जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, सहयोगी जिसको कह सकते हैं, वो 3 ही मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता और भास्कर द्वितीय। अब आर्यभट्ट का मेन कंट्रीब्यूटर्स क्या था कि आर्यभट्ट वर्कड आउट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आर्यभट्ट वर्क किए थे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने के लिए, पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए और पाई का एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो आर्यभट्ट वर्कड आउट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड एंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई।
for main work of by the Aryabhat, and Brahmagupta discovered the formula. Brahmagupta discovered the formula for finding the area of a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया को फाइंड करने के फॉर्मूला का जो डिस्कवर हुआ था वो ब्रह्मगुप्ता ने किया था. एंड नेक्स्ट लास्ट इज भास्कर द्वितीय गेव ए डिफेक्शन प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब स्टूडेंट्स नाउ we have study about the axioms and the postulates. So first of all we know about the statement. What is the statement? A statement is a sentence which can be judged true or false. A sentence which can be judged true or false. A sentence which can be judged true or false is called a statement. मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसको जज किया जा सके कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. जैसे the sum of the angles of a triangle is 180 degree. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. This is the sentence, but इसको जज किया जा सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल्स, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. इस सेंटेंस को भी जज किया जा सकता है कि ये सेंटेंस गलत है. दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. And an examples of sentence x plus 10 is greater than 15. So this is a sentence, not a statement, because if x plus 10 is greater than 15 को जज नहीं किया जा सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है जब तक कि x का वैल्यू फाइंड ना हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसको जज किया जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्या? अ स्टेटमेंट. एक्शंस एंड पोस्टुलेट्स आर मेनली ट्रू स्टेटमेंट्स. Friends, Euclid assumed the contents of statements as being true without proof. Euclid ने कुछ ट्रू स्टेटमेंट्स को कंटेन किया और विदाउट प्रूफ, जिसका प्रूफ की आवश्यकता ना हो. वैसे स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता ना हो. Euclid divided this assumption, और ये सब जो assumptions को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड axioms एंड द सेकेंड इज द postulates. Axioms का मतलब सिद्धांत. एंड postulates it means सिद्ध प्रमाण. Axioms applicable every parts of mathematics. Axioms एक ऐसा स्टेटमेंट्स जिसको मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच, किसी भी पार्ट्स में उसका यूज किया जा सकता है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ द मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा, ट्रिकोनोमेट्री, etc. एंड postulates applicable only on geometry. पोस्टुलेट्स जो है वो केवल ज्योमेट्री में ही इसका यूज कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के किसी और पार्ट में इसका यूज नहीं किया जा सकता.
So the mainly difference between the axiom and the postulates are कि axiom applicable to every parts of mathematics and postulates only on geometry. Okay. There are 7 axioms given by Euclid. It means 7 statements without proof, which used any parts of mathematics. So, first, things which are equal to same things. Things मतलब which are equal to same things are equal to one another. It means if A equal to C and B equal to C, things, तो A and B are things which are equal, जो कि equal है same thing से, यानी same thing which C are equal to one another. So A is equal to C and B is equal to C, then we say that कि A equal to B. Okay? A equal to B. अगर A and B सेम चीज पे आपस में इक्वल है तो A और B भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. सेकेंड एक्शंस, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर दो चीज इक्वल है जैसे 2 इक्वल टू 2, ओके, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स और दोनों साइड में इक्वल थिंग्स ऐड करते हैं, जैसे +1 इधर कर दिए और +1 इधर कर दिए, तो होल्स आर इक्वल, तो जो होल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, जैसे A इक्वल टू B, अब दोनों साइड में हम C ऐड कर दिए तो जो होल है A प्लस C और B प्लस C, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. थर्ड नंबर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सेम चीज, इसमें प्लस करना था, यहां माइनस करेंगे हम लोग. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. इट मींस कि 2 इक्वल टू 2 इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो दोनों साइड में अगर हम 1 माइनस कर दें, इक्वल, दोनों साइड में सेम चीज माइनस कर दिए, तो जो हमारा होल होगा 1 इक्वल टू 1, रिमाइंडर आर इक्वल्स. तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. नेक्स्ट 4 नंबर, कि थिंग्स व्हिच आर क्वांटिफाइड, वैसे थिंग्स जो एक जैसा हो. क्वांटिफाइड इट मींस एक जैसा, एक रंग रूप, एक आकार, with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. जैसे suppose that 2 सर्किल लेते हैं, एक सर्किल यहाँ है, दूसरा सर्किल यहाँ है, दोनों एक जैसा है, coincide है, दोनों का रेडियस अगर सेम हो तो हम लोग कहेंगे कि थिंग्स विच आर क्वांटिफाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. यानी वैसी चीजें जो एक जैसा हो एक दूसरे के, तो वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट 5 नंबर, कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. जैसे 100 लीटर्स दूध है, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में बांट दिए, 10-10 लीटर में, 10 लीटर्स का 10 पार्ट्स में हमने इसको क्या किया? डिवाइड किया. तो ईच पार्ट इज लेस देन होल. तो ये क्या है? ये होल है और ये क्या है? पार्ट ऑफ द होल. ये होल का एक पार्ट है जो 10 लीटर इज लेस देन 100 लीटर. तो वी से दैट कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. तो होल जो होगा वो अपने पार्ट से क्या होगा? ग्रेटर होगा.
Okay, students, 6 axioms state that things which are double of the same things are equal to one another. It means things which are double, 2x equal to y and 2x equal to z. Okay, things which are double of the same thing, y equal to 2x, which are double of the same things are equal to one another. So we say that y equal to z. Okay, y equal to z. Next 7 number, things which are half of the same thing. सेम चीज है, जो 6 है वही 7. थिंग्स विच आर द हाफ ऑफ द सेम थिंग्स. इट मीन्स वहां डबल था, यहाँ पे हाफ. हाफ एक्स इक्वल टू वाई एंड हाफ एक्स इक्वल टू जेड. सो सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सो वी से दैट वाई इक्वल टू जेड. सेम थिंग्स के हाफ के इक्वल थिंग्स जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. फॉर स्टूडेंट्स, these are the 7 actions of Euclides given by Euclides. Okay.